Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hello, my name is Shagun and you are watching Learn with Shagun. So by the title it is very much clear that today we are going to do trans effect, the causes of trans effect, the theories of trans effect and little applications of trans effect. So firstly, let us discuss about the meaning, rather I would say definition of trans effect. So what is trans effect? Trans effect is the ability of a group coordinated to a metal ion to increase the lability of ligand trans to it and thus direct an incoming ligand at this place. So this is very much the statement. सो मैंने अपने डेफिनेशन में दोनों एस्पेक्ट्स को कंबाइन किया है, जिसमें आई टॉक अबाउट द लिबिलिटी ऑफ द लिगेंड विच इज़ इन ट्रांसपोजिशन. ऑल्सो आई टॉक अबाउट द सब्सटीट्यूटिंग लिगेंड जो कि सब्सटीट्यूट करता है आके ट्रांस लिगेंड को. सो बेसिकली हम इसे पहले समझ लेते हैं इलस्ट्रेशन के थ्रू डेफिनेशन को, देन ओनली वी विल गेट सम क्लैरिटी ऑफ द डेफिनेशन. ओके, सो लुक एट दिस square planar geometrical kind of coordinated compound. Now the center basically represents the metal ion over here, okay, and these four are the ligands attached to it. This is, you can clearly see a square planar geometry. Okay, now you clearly see that these three ligands attached to it are very much identical, which are labeled as L right here by me, and this fourth ligand over here is X. It is sort of different from these three ligands. It has different properties. Okay, now this particular effect is mostly shown by the coordinated complexes which are in square planar geometry and basically which are having different trans ligands. Okay, different ligands in the transposition, rather I would say. They cancel out each other's effect, but these two are different, so these two may be having different properties and they are not able to cancel out each other properties. Okay, this may have more electronegativity or polarizability or whatever. This we would discuss later. Let us talk about this ligand's ability. Now the ability of a particular ligand to make the ligand trans in position to it labile. इसके पास क्या एबिलिटी है कि ये मेटल आयन के साथ अपनी ट्रांसपोजिशन पे जो लिगेंड बैठ रखा है उसके जो बॉन्ड है उसको वीक बना देता है. तो नाउ व्हाट विल हैपन, अगर इसका बॉन्ड वीक बन जाएगा तो अगर कोई बाहर से और कोई एटम या एंटिटी आती है, आयन आता है, तो वो इजीली इसे क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, राइट. बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिगेंड इट हैज मेड द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ऑफ द ट्रांस लिगेंड which is in position to it weaker. Okay, which is labile. Okay, now this has become labile. What will happen is this bond will be stronger, and as a result of which the other bond will become weaker and lengthened. Okay, now ultimately what will happen is this particular ligand will get detached from it, and as a result of which if any sort of other ligand approaches this particular metal complex, it will easily get attached to it. Now the substitution reaction has taken place. Okay, so we have talked about both the aspects of this definition right now, that trans effect is the ability of a group coordinated to a metal ion, which was this X group particularly. Okay, its ability to increase the lability of ligand trans to it, राइट. इसने एल वाले की अपने ट्रांस में जो एल बैठा था उसकी जो है वो बॉन्ड को वीक बना दिया, उसे लेबाइल बना दिया, और एज अ रिजल्ट क्या किया, इनकमिंग लिगेंड को उसकी प्लेस में जो है वो अटैच होने में हेल्प किया. तो ट्रांस इफेक्ट इज शोन बाय लिगेंड्स. ओके, इट्स नॉट अ मेटल प्रॉपर्टी, इट्स अ लिगेंड प्रॉपर्टी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि क्यों होता है ये ट्रांस इफेक्ट या कैसे होता है ये ट्रांस इफेक्ट. तो इसके लिए थ्योरीज दी गई हैं और बेसिकली हम दो थ्योरीज की बात यहाँ पे करते हैं. जो ट्रांस इफेक्ट है, इट्स अ काइनेटिक फेनोमेनन बेसिकली विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन. नाउ आई डू नॉट नीड टू टेल यू कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है रिएक्शन की. ऑल ऑफ अस नो कि डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट, जो कि ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में रिएक्टेंट है, उसकी जो एनर्जी
उसकी जो एनर्जी है और जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है उनके बीच के डिफरेंस को ही एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। और जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतनी ही जल्दी जो है जो रिएक्शन है हमारा वो होता है, राइट। सो फॉर अ कम्प्लेक्स स्टेबिलिटी जो हमारा ये एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको दो तरीके से कम किया जा सकता है। बिकॉज ट्रांस इफेक्ट के रिजल्ट में सब्स्टिट्यूशन जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो अपने ट्रांस लिगेंड को क्या कर देता था, अनस्टेबल कर देता था और फटाफट सब्स्टिट्यूशन करा देता था। अब कैसे ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ताकि रिएक्शन फटाफट हो जाए, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बताई गई हैं। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है, मतलब पर्टिकुलरली इस गैप को हमने कम करना है, यहाँ पे देखो ये ओरिजिनल रिएक्शन प्रोफाइल है किसी भी रिएक्शन की। मान लो कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन प्रोफाइल है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। अब इसे हमने कम करना है, तो इसे हम कम कैसे कर सकते हैं? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। या तो हम रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को जो है वो ज़्यादा करते हैं। वो कैसे हो सकता है? जब किसी को अनस्टेबल करते हैं तभी उसकी एनर्जी ज़्यादा की जा सकती है, उसे हायर एनर्जी स्टेट पे लेकर आया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी यही है कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रेज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स बाय वीकनिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड ट्रांस टू इटसेल्फ। हमारे पास जो ओरिजिनली जो रिएक्टेंट है उसमें मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है उसे अगर वीक कर दिया जाए तो उसकी एनर्जी क्या, वो अनस्टेबल हो जाएगा और एज अ रिजल्ट जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट और उसके बीच में ज़्यादा जो गैप है वो बचेगा नहीं और एक्टिवेशन एनर्जी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, रिएक्शन फटाफट हो जाएगा। फर्स्ट आई होप क्लियर है कैसे हुआ। दूसरा जो है, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बाय स्टेबलाइजिंग इट। नाउ व्हाट कैन यू डू इज, आप क्या करिए कि जो ट्रांजिशन स्टेट की हाई एनर्जी थी उसे लो कर दो। आई विल टेल यू कि क्या होता है कि अगर आप ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देते हो, स्टेबल कर देते हो, राइट। जब आप किसी चीज़ को स्टेबल कर देते हो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी लो हो जाती है। तो वैसे हमने पढ़ रखा है कि ट्रांजिशन स्टेज की जो एनर्जी होती है इट्स क्वाइट हाई, बट इसकी जो एनर्जी ओरिजिनली थी अगर उससे आप थोड़ा बहुत चेंज करके उसको थोड़ा कम कर सकते हो तो आप अल्टीमेटली उसकी एनर्जी कम कर दोगे, जिसकी वजह से रिएक्टेंट स्टेट और उसमें गैप कम बचेगा और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ये दो तरीके हैं, these are two ways. So let us study these theories turn by turn. Okay, now before discussing the theories, let me give you some clarity about the concept. Now there is a thing called transdirecting ligand. Now what is a transdirecting ligand? What is a good transdirecting ligand? Now the ligand we talked about in the illustrative example, which was the X ligand, which was directing, okay, the other ligands, okay, in the position trans to it. So now this is called the transdirecting ligand, okay, which directs what ligand should be in the position trans to it. Now that is why this is called a transdirecting ligand. Now what do they say about a good transdirecting ligand is, a good transdirecting ligand would weaken the bond between the metal and the trans ligand. Now suppose this is a transdirecting ligand, okay, what does it do is it weakens the bond which is trans in position to it. Why? Because this is having a sort of larger overlapping with the metal ion as compared to this, because I already discussed कि इनके जो properties थे वो अलग अलग थे। So इसका property अलग है, इसका प्रॉपर्टी अलग है, जिसकी वजह से ये जो है ये ज़्यादा ओवरलैपिंग कर रहा है, ये कम ओवरलैपिंग कर रहा है मेटल के साथ। तो अगर ये कम ओवरलैपिंग कर रहा है ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ये जो है वो लार्जर ओवरलैपिंग की वजह से क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा इसके ऑर्बिटल्स के साथ। नाउ दिस इफेक्ट इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट इन ट्रांस इफेक्ट, दैट this is a sigma bonding effect. This shows more overlapping, this shows lesser overlapping. A strong sigma bond between this ligand and the metal weakens the bond between this metal and this ligand. Okay, I hope it is understood. Now everyone, there are two theories of trans effect. Okay, number one is the polarization theory and number second is the pi bonding theory. So in the reaction profile, when we studied the reaction profile, we saw that there are two ways, okay, to change the activation energy. The first way was in which we were dealing with the ground state. We were bringing some changes in the ground state, and the second is in which we were dealing with the transition state. हम उसमें कुछ changes लेके आ रहे थे। तो ये
थियरीज जो हैं हमारी ट्रांसफेक्ट की, ये भी इन्हीं से डील करती हैं। सबसे पहले पोलराइजेशन थ्योरी है जिसमें हम ग्राउंड स्टेट के साथ डील करते हैं। अनदर थ्योरी इज पाई बॉन्डिंग थ्योरी जिसमें हम डील करते हैं अपने ट्रांजिशन स्टेट के साथ। ओके, so let us first discuss the polarization theory. Now this is a good theory. This was given by Greenberg. This theory proposes that the metal center has a tendency to induce a dipole moment in the surrounding ligands by polarizing them according to Fazan's rule. Now इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि ट्रांसफेक्ट उतना ही ज्यादा कोई लिगेंड शो करेगा जितनी ज्यादा उसकी जो है वो पोलराइजेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल आयन के अराउंड जो है वो सेम लिगेंड लग रखे है ए, सो इट इज MA4 कॉम्प्लेक्स। ओके, अभी क्या है कि इवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज कुछ चेंजेस तो है नहीं है चार्जेस में अक्रॉस द मेटल लाइन, सो इट इज फॉर्मिंग अ वेरी मच स्टेबल कॉम्प्लेक्स जहाँ पे कैंसिल आउट हो गया इसका चार्ज इससे, इसका चार्ज इससे, इट्स ऑलमोस्ट कैंसिल आउट। नाउ लेट अस डिस्कस दिस मेटल कॉम्प्लेक्स. दिस इज ऑल्सो स्क्वायर प्लेनर बट इट इज हैविंग one ligand different. Okay, so AAA and 1B. Okay, now this ligand is having sort of higher polarizability. पोलराइजेबिलिटी मतलब दूसरे को पोलराइज करने की एबिलिटी. सो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ अलग तरीके से, इस पे ज़्यादा जो है वो पोलराइजेबिलिटी है. तो ये क्या करता है कि अब ये चेंजेस लेके आता है मेटल आयन के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन इस जगह पे ज़्यादा है. तो ये क्या करेगा कि इसके पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि ये इसके साथ जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो स्टैब्लिश कर पाए ए लिगेंड का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से जो मेटल की और जो ए लिगेंड की जो बॉन्ड है इट विल बिकम वीक अल्टीमेटली एंड द ए लिगेंड विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट एंड दूसरा लिगेंड आके सब्स्टिट्यूट कर देगा आराम से. तो ये होता है. तो अट्रैक्शन ऑफ ए फॉर मेटल रिड्यूसेस, देयरफॉर बॉन्ड लेंथ. नाउ देयरफॉर जो बॉन्ड है इट लेंथन्स मतलब लंबा हो जाता है बॉन्ड और वीक भी हो जाता है. ऑब्वियसली जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उतना वीक होगा बॉन्ड. ओके, क्या बोल रहे हैं इस पर हम कि इस कॉम्प्लेक्स पे हाई पोलराइजेबिलिटी जो बी की है इट इंड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल मूवमेंट इन द मेटल एंड लिगेंड एटम्स अफेक्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है, डिटैच हो जाता है, नया बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. ओके, चलो नाउ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बेसिस पे जो अभी हमने देखा. इसमें पूछा है कि व्हाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इजियर इन केस ऑफ द सिस आइसोमर बट डिफिकल्ट इन ट्रांस आइसोमर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज हैविंग टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लिगेंड्स. ओके, तो यहाँ पे जो है वो इफ सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन द पोजिशंस, ट्रांस पोजिशंस. ओके, तो इस आइसोमर में क्या हो रहा है कि सेम लिगेंड जो है वो एडजेसेंट पोजिशंस पे. ओके, यही होता है. बॉन्ड लेंथ की तरफ आप अटेंशन दीजिए अपना कि यहाँ पे जो मेटल और क्लोरीन का जो बॉन्ड है दैट इज सॉर्ट ऑफ लेस. ठीक है, और जो सिस आइसोमर है उस पर ये बॉन्ड जो है वो कुछ ज़्यादा है. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस आइसोमर में जो ट्रांसफॉस्फीन ग्रुप है आपका वो वीक कर देता है आपके मेटल और क्लोरीन के बॉन्ड को. अब देखो क्या हो यहाँ पे क्या होगा. अब देयर इज़ अ क्वेश्चन कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा ट्रांस डायरेक्टिंग है, कौन सा कम ट्रांस डायरेक्टिंग है. तो इसकी एक सीरीज़ होती है, देर इज़ अ सीरीज, ट्रांस सीरीज जिसे हम बोलते हैं, जिससे पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ट्रांसफॉस्फीन है, अब इसका जो पोलराइजेबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो ये क्या करता है कि ये जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से मेटल और क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है. ओके, इसके लिए इसकी लेंथ यहाँ पे फिर बढ़ जाएगी. जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर कोई ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग है उसका और मेटल का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग मेटल बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि बॉन्ड जो है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से जो दूसरा बॉन्ड है वो क्या हो रहा है उसकी लेंथ इंक्रीज कर रही है. अब अल्टीमेटली कितना लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ही वीक होगा. ओके, अगर यहाँ पे अब आप इसका देखो, इसका और इसका जो ये एल है और ये एल है, ये दोनों जो है वो सेम ही लेंथ के बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो ये अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं एल और ये नहीं कर पा रहे हैं कैंसिल आउट, जिसकी वजह से वो वाला बॉन्ड जो है वो दैट इज लॉन्गर.
तो हम कह सकते हैं कि सिस आइसोमर में क्यों है सब्स्टिट्यूशन ईजी, बिकॉज ये वाला बॉन्ड फिर इलोंगेट कर जाता है ज़्यादा, जिसकी वजह से इसको डिटैच करना ईजी हो जाता है और नया आसानी से यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर सकता है इसको, इस एटम को. सो दैट इज़ वाई. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. अब हम पाई बॉन्डिंग थ्योरी की तरफ चलते हैं, विच इज़ द लास्ट थ्योरी, सेकेंड थ्योरी, जो डील करती है ट्रांजिशन स्टेट के साथ. अब नाउ व्हाट डज इट सेज इज कि सम लिगेंड शो एक्सेप्शनली हाई ट्रांसवेक्ट बट दीज आर इन वेरी गुड सिग्मा डोनर्स. हमने ऊपर बात की थी कि जो अच्छे सिग्मा डोनर्स होते हैं वो ओवरलैप ज़्यादा अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से अच्छा ट्रांसवेक्ट शो करते हैं दूसरे को वीक करके. बट ये तो नहीं है अच्छे सिग्मा डोनर्स. ये क्यों इतना अच्छा कर रहे हैं ट्रांसवेक्ट शो? बिकॉज दे आर पाई एक्सेप्टर्स इंस्टेड. और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में जो जितना अच्छा पाई एक्सेप्टर होता है, अभी आप ये देखो, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन जो है वो ये है, और जो आपके लिगेंड्स लग रखे हैं, दिस इज द एल लिगेंड, दिस इज द एल लिगेंड, दिस इज टी एंड दिस इज एक्स. ओके, नाउ सपोज कि जो टी लिगेंड है वो बहुत ही बढ़िया पाई एक्सेप्टर है. ओके, सो क्या होगा कि नाउ यू नो कि सिग्मा बॉन्ड तो ये एक फॉर्म कर ही रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके जो मेटल आयन है, इसके जो आपके और भी जो मेटल आयन है, इसके और भी ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें इसकी पाई डेंसिटी जो है वो लाई कर रही होगी. अगर ये बहुत अच्छा पाई एक्सेप्टर है तो इसके भी कुछ ऑर्बिटल्स होंगे. अब वो ऑर्बिटल्स जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या ओवरलैपिंग एमएस से पाई एक्सेप्टर है, तो इसकी डेंसिटी को इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग होगी और बहुत ही बढ़िया इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगी. अब इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होंगे, सिग्मा तो है ही है, पाई बॉन्डिंग भी फॉर्म हो गई. अब यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का जो है आपका जो ट्रांस में जो इन दोनों के प्रेजेंट है, अब ये तो वीक हो जाएगा ना बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टैब्लिश हो गई, जिसकी वजह से अगर कोई और सबस्ट्रेंट जो है यहाँ पे इसकी जगह पे जो जगह इसकी लेने आता है, अगर फॉर एग्जांपल वाई आ रहा है, अब डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे वाई अटैच नहीं होता. हमें पता है कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें एक्स और वाई दोनों कंबाइन इसके साथ जो है वो जुड़ रखे होते हैं, जिसमें एक्स लास्टली जो है वो थोड़ा सा वीक होकर यहाँ से निकल लेता है और वाई जो है वो पोजिशन ले लेता है, दोबारा स्क्वायर प्लेनर आ जाता है हमारे पास. लेकिन अभी हम जो है वो ट्रांजिशन स्टेट की पर्टिकुलरली यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो पढ़ेंगे. ओके, सो दो लिगेंड तो ये पोजीशन ले लिए, एक्स यहाँ पे आ गया, टी आपका यहाँ पे है और वाई भी यहाँ पे आ गया. 5 कोऑर्डिनेटेड आपका कॉम्प्लेक्स बन गया हुआ है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, अब ये अपनी मेटल अपनी पाई डेंसिटी बहुत बढ़िया तरीके से इसके साथ शेयर कर ले रहा है, जिसकी वजह से अच्छा बॉन्ड बनने की वजह से ये वीक हो गया है. और यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है, अब ये बहुत स्टेबल इसलिए बनता है क्योंकि जो मेटल और टी लिगेंड की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है. अब ये बहुत स्टेबल हो गया, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा ट्रांजिशन जो कॉम्प्लेक्स है, जो ट्रांजिशन स्टेट है, उसे अगर हम स्टेबलाइज कर देते हैं तो ये जो इसकी जो ओरिजिनल एनर्जी थी उससे क्या होता है कि ये कम हो जाती है, जिससे ये एनर्जी अगर कम हो गई तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और ट्रांस इफेक्ट जो है वो शो होगा. तो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से कम होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फटाफट हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे अब इन दोनों के पाई बॉन्डिंग शो करने की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी वो बहुत कम हो गया, क्योंकि ये खुद ट्रांजिशन स्टेट बहुत स्टेबल हो गई है. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर कि किस तरीके से जो हमने एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी उसको लो किया, जिसकी वजह से फैसिलिटेट हुई है लिबिलिटी ट्रांस लिगेंड की. ओके, तो ऑर्डर आपका पाई एक्सेप्टेबिलिटी का इस तरीके से दे रखा है. कुछ लिगेंड्स हैं, कौन कितना ज़्यादा पाई एक्सेप्टेबल है, मेटल के जो पाई डेंसिटी है उसको कौन कितना ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, उसके बेसिस पे एक सीरीज़ है. जो जितना अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगा उतना ही अच्छा बॉन्ड बनाएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा जो वो है ट्रांस इफेक्ट जो है वो फिर शो करेगा. ओके, तो ये सीरीज़ है. सो आई होप ट्रांस इफेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर है आप सबको अब. और फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.